Good morning, student. Morning, sir. Good Good morning, morning, sir. Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. So, what about last lecture? In last lecture, what we discussed? Anybody have any idea? Because it is on D Monday. થી Sorry. બાકી છે. Yes. ડી આલ્મંડ ટેસ્ટ થી બાકી છે. Yes. D. Albert ratio test. उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसा कुछ किया था? નહીં. नहीं. Okay. So we start with the D-Albert ratio test. Okay. Then we go for the Cauchy root test, and then we discuss about the alternative series if possible. So this is the flow of the today's session. So we start with the D-Albert ratio test. Okay. That means we already completed or already discussed about the comparison test, geometrical test, then P test. Am I right or wrong? રાઈટ સર. Okay, so Yes. we already discussed about those tests. So today I am going to discuss about the D-Albert ratio test. So D-Albert ratio test, if summation n equal to 1 to infinity, un is a positive term series and limit n tends to infinity un plus 1 upon un. So here ratio means you can take a ratio of two term. ओके तो यहाँ पे देखो un प्लस वन एंड un का रेशियो लिया और उसका लिमिट अगर आप फाइंड करते हो दैट इज द लिमिट से लिमिट l. ओके एंड एज पर द लिमिट और वैल्यू ऑफ द लिमिट वी कैन डिफाइन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट. दिस is suggested by D-Albert, so it is named as the D-Albert's ratio test. Okay, so for example, if your L is less than 1, then the given series is convergent, and if L greater than 1 means जो भी वैल्यू यहाँ पे मिलता है वो वैल्यू L greater than 1 है, then the given series is divergent. So what about L is equal to 1? So if L is equal to 1 means अगर आपका लिमिट L is equal to 1 मिलता है, then the ratio test fails, means you cannot say anything about the convergence and divergence of that series. So you have to go for the comparison test or P test or geometrical test. Okay, in that case जब fail होता है तब, that means you cannot consider ratio test for convergence and divergence of that series for L is equal to 1. So is there any doubt in this test? No, sir. No, sir. ओके सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो स्टेप में एग्जांपल करेंगे. सबसे पहले हम un डिफाइन करेंगे और जैसे ही हमारे पास un आता है देन गो फॉर द un प्लस वन, देन un प्लस वन अपॉन un फाइंड करो, देन फाइंड द लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी un plus 1 upon un. तो if you say this is third step and this is fourth step, तो ये अगर हमको मिल जाता है then you can directly say that if L greater than 1 then divergent, L less than 1 then convergent, and L is equal to 1 then test failed. Okay, so look at here first example. Test the convergence of the series 1 upon 10 plus 2 factorial upon 10 square plus 3 factorial upon 10 cube and so on. So what is the nth term of this series? Anybody? n factorial by 10 raised to n. Yes, very good. N factorial by 10 raised to n. So this is my un, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So un plus 1, I can find un plus 1. So n plus 1 factorial divided by 10 raised to n plus 1. So if you take ratio of that, that means un plus 1 upon un. So we have n plus 1 factorial डिवाइड बाय 10 रेज टू n प्लस 1 इंटू, अब इसको तो उल्टा करना पड़ेगा, दैट मीन्स 10 रेज टू n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल. सो इसको अगर मैं अच्छी तरीके से सोचूं तो आई कैन सेपरेट n प्लस 1 फ्रॉम n प्लस 1 फैक्टोरियल, देन इट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 रेज टू n इंटू 10, क्योंकि n प्लस 1 है तो एक 10 को सेपरेट लिख सकता हूँ, 10 raised to n upon n factorial. So n factorial and n factorial will be cancel out, and 10 raised to n, 10 raised to n will be cancel out. So we have only n plus 1 upon 10. So if you find limit n tends to infinity
un plus 1 upon un is equal to limit n tends to infinity n plus 1 upon 10. So what is my answer here? Infinity. Infinity. Okay, so infinity means greater than 1 or less than 1? Greater than 1. ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा क्या टेस्ट क्या बोल रहा है? डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट डाइवर्जेंट है ना. सो दैट मींस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट. सो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो un फाइंड किया, un प्लस 1 फाइंड किया, un प्लस 1 अपॉन un वो अच्छी तरीके से सॉल्व करके लिखेंगे. सो वी हैव n प्लस 1 अपॉन 10. देन इफ यू फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, it is infinity which is greater than 1. So the given series is divergent by D'Albert's ratio test. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. So think about example number 2. Example number 2 is test the convergence of the series summation n equal to 1 to infinity n square plus 1 upon 5 raised to n. So here already they given up un. So un is equal to n square plus 1 upon 5 raised to n. So, and un plus 1 क्या होगा हमारा? So n plus 1 whole square plus 1 divided by 5 raised to n plus 1. Yes or no? Yes, sir. So un plus 1 upon un n plus 1 square plus 1 upon 5 raised to n plus 1 ऊपर ही है. ओके इनटू यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा तो 5 raised to n upon n square plus 1 होगा. तो here we can cancel out only 5 raised to n. Am I right? Okay, है ना? 5 raised to n ही कैंसिल होगा ना, क्योंकि आप जैसे ही इसको सेपरेट करेंगे. सो दिस इज नथिंग बट 5 raised to n into 5. सो 5 raised to n विल बी कैंसिल आउट. अब इस ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 1/5 एज इट इज. नाउ व्हाट वी हैव n plus 1 whole square plus 1 डिवाइड बाय n square plus 1. तो जो न्यूमरेटर है उसमें से मैं कितने n कॉमन निकाल सकता हूँ? 2. That means n square कॉमन निकलेगा. तो what I have 1 plus 1 by n whole square plus 1 upon n square divide by 1 plus 1 upon n square. नीचे से भी मैंने n square कॉमन निकाला तो I have 1/5. n square will be cancel out. 1 plus 1 upon n whole square plus 1 upon n square divide by 1 plus 1 upon n square. Yes or no? Yes, sir. So limit n tends to infinity un plus 1 upon un हम फाइंड करेंगे. So what is my answer? 1/5. By 5. 1/5 1 plus 0 whole square plus 0, क्योंकि 1 upon infinity होता है 0. तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0. So 1 plus 0 square plus 0 divided by 1. तो 1/5. 1/5 is greater than 1 or less than 1? Less than 1. Less than 1. That means given series is Divergent. Convergent. Convergent. मिक्सअप मत करो, कन्वर्जेंट होगा, है ना. लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट. तो यहाँ पे देखो un प्लस 1 फाइंड किया, un प्लस 1 अपॉन un फाइंड किया. तो उसके बाद हमने लिमिट भी फाइंड किया, लिमिट 1/5 विच इज लेस देन 1. Then the given series is convergent by D'Albert ratio test. So is there any doubt? No, sir. No, sir. Give me quick response, everybody, please. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Thank you. Next,
is the convergence of the series summation n equal to 1 to infinity 3 raised to n factorial upon n raised to n. So this is my un. So I start with this. So un is equal to 3 raised to n factorial upon n raised to n. Now un plus 1 is equal to क्या होगा, जहां जहां पर भी n है वहां पे हम n plus 1 रिप्लेस करेंगे, तो 3 raised to n plus 1 factorial upon n plus 1 raised to n plus 1. ओके, अब यहाँ पे un plus 1 upon un करूंगा तो 3 raised to n plus 1 n plus 1 factorial divided by n plus 1 raised to n plus 1 into, ये उल्टा हो जाएगा, दैट मींस n raised to n upon 3 raised to n into n factorial. अगर इसको सिंप्लीफाई करें एक टर्म ज्यादा, तो यहाँ पे 3 raised to n into 3, यहाँ पे n plus 1 into n factorial, यहाँ पे n raised to n डिवाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा n plus 1 raised to n into n plus 1 एंड यहाँ पे 3 raised to n into n factorial होगा. So if you cancel 3 raised to n and n factorial, yes, then yes, n plus 1 is there also, so n plus 1 is also cancelled. So we have 3n raised to n divided by n plus 1 raised to n. Is it clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं क्या करूंगा, जो मैं जानता हूं उसमें मुझे इसको ट्रांसफर करना है, तो मैं उसको ऊपर ले लूंगा और जो ऊपर है उसको नीचे. दैट मींस क्या होगा, देखो, तो 3n plus 1 raised to minus n upon n raised to minus n हुआ. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो n plus 1 upon n raised to minus n. yes or no? Yes, sir. So 3 1 plus 1 upon n raised to minus n. अब इसको अगर मैं सोचूं तो 3 1 plus 1 upon n raised to n, और ऊपर में उसको माइनस हटा लेता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ, दैट मीन्स -1. ओके, अब इसका मैं अगर लिमिट फाइंड करता हूँ तो व्हाट आई हैव, क्या मिलेगा इसका लिमिट, तो इसका लिमिट अगर आप फाइंड करेंगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा. अब इसके लिए फॉर्मूला है, यू नो वेरी वेल, है ना, लिमिट का फॉर्मूला है, क्या होता है इसका आंसर, e. ओके, तो e एंड ऊपर रेज टू -1 है, तो दिस इज माय आंसर ऑफ द लिमिट. तो यहाँ पे देखो, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी un plus 1 upon un is equal to 3 into e raised to -1. yes or no? Yes, sir. एंड हियर 3 upon e हो जाएगा. अगर यहाँ पे 3 upon e किया तो 3 upon 2.71 समथिंग होता है ना e की वैल्यू. तो Yes, sir. तो ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1? Greater than Is 1. the one. नहीं, less than 1. पक्का आप ट्राई करो तो मोबाइल में ये फाइंड करने के लिए. Greater than 1. Greater than 1, sir. ग्रेटर देन होगा सर. Greater than 1. दिस इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे जो लिखा है वहां पे क्या आएगा, ग्रेटर. ओके, ग्रेटर देन 1. देयरफॉर अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, Divergent. divergent. ओके, ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा. आप फिर से रेशियो टेस्ट का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो. ओके, L greater than 1 then divergent, L less than 1 that means convergent. इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखो या फिर राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक. ओके, तो इजी रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ हमको L ही आइडेंटिफाई करना है. L मिल जाता है देन इट इज ओके, यू कैन डिसाइड योर कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और टेस्ट फेल. ओके, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. Then we go for next example. Okay, is the convergence of the series summation n equal to 1 to infinity n upon e raised to minus n. Okay, ये तो बहुत इजी है, चलो फटाफट देख लो. अगर कहीं पर भी डाउट है तो मुझे पूछो. चलो एवरीबॉडी. एनी डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. Okay, आप जैसे ही यहाँ पे मैं आपको फटाफट क्विकली दिखा देता हूँ. un हमने फाइंड किया, un plus 1 फाइंड किया, un plus 1 upon un के बहुत इजी है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप देख लो. n plus 1 upon n e.
अब un प्लस वन अपॉन un करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस वन अपॉन n इंटू ई हो जाएगा। अब जैसे आप लिमिट ऑपरेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 0 और ई तो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा एंड टोटल आंसर इज ई एंड ई इज ग्रेटर देन 1, therefore the given series is divergent by D-Albert ratio test. Any confusion, any problem? No, sir. Okay, No, बहुत sir. ही अच्छा example. Okay, next example. Test the convergence of the series summation n equal to 1 to infinity n into 2 raised to n plus 1 factorial upon 3 raised to n into n factorial. So this is my an, सॉरी un, an भी बोल सकते हो, un भी बोल सकते हो। तो un, तो ये मेरा un है, un प्लस वन में फाइंड करूंगा तो इन ईच टर्म आई हैव टू रिप्लेस n बाय n प्लस वन, तो n प्लस वन 2 रेज टू n प्लस वन, n प्लस वन दैट मीन्स n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 रेज टू n प्लस वन इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे un प्लस वन अपॉन un किया। अब इसमें से आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा अलग तरीके से देखना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं, अगर आप अच्छी तरीके से डील करेंगे तो। n प्लस वन एज इट इज रखा मैंने, 2 रेज टू n प्लस वन का 2 हम पार्टीशन कर सकते हैं, 2 रेज टू n इंटू 2। n प्लस 2 मैंने, n प्लस 2 फैक्टोरियल है, उसमें से मैंने कॉमन निकाला n प्लस 2 मीन्स बाहर रखा और n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 रेज टू n इंटू 3 n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसका काम खत्म किया मैंने। नाउ हियर 3 रेज टू n एज इट इज, n फैक्टोरियल एज इट इज, n as it is, 2 raised to n as it is and n plus 1 factorial is there। तो यहाँ पे कितना कैंसिल हुआ, यू कैन सी हियर n plus 1 factorial, n plus 1 factorial कैंसिल आउट। यहाँ पे आपके पास 3 raised to n, 3 raised to n कैंसिल आउट, 2 raised to n, 2 raised to n भी कैंसिल आउट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा वो हमको सोचना है। n plus 2, ओके हाँ, तो n प्लस 2 अभी कैंसिल नहीं हुआ, तो n प्लस 2 बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, n फैक्टोरियल बचेगा, नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल बचा। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल में से यस वी कैन डू, ओके। तो n प्लस 1 यहाँ पे 2 है, n प्लस 2 यहाँ पे n फैक्टोरियल एज इट इज रख रहा हूँ एंड नीचे मेरे पास बचेगा 3n इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ओके। तो ये n फैक्टोरियल विल बी कैंसल आउट, n प्लस 1 कैंसल आउट, ओके। तो आई हैव 2/3, ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास बचेगा n प्लस 2 अपॉन n, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1 प्लस 2/n बचेगा। सो इफ यू फाइंड आउट द लिमिट, सो 1 प्लस 0 हो गया, तो यहाँ पे आंसर मेरा लिमिट का आंसर आएगा 2/3। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. सो यहाँ Yes, sir. Yes, sir. है, यहाँ पे n प्लस 2 आना चाहिए, यस। तो n प्लस 2 अपॉन n होगा और उसका आप लिमिट फाइंड करेंगे तो 2/3 विच इज लेस देन 1, then you can say that the given series is convergent by D-Albert's ratio test. Is it clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. एंड नेक्स्ट प्रीवियस एग्जांपल में भी जो करेक्शन था वो देख लेना एक बार, है ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 upon 1 plus 2 raised to minus 1 plus 2 upon 1 plus 2 raised to minus 2 plus 3 upon 1 plus 2 raised to minus 3 and so on। चलो इसका nth टर्म लिखवाओ, व्हाट इज माय un? n by 1 plus 2 raised to minus n। यस, 1 plus 2 raised to minus n, वेरी गुड। तो un मेरा हो गया, तो un प्लस 1 में फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो un इज इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू माइनस, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसमें गलती हुआ तो पूरा गलती हो जाएगा, अगर ये सही तरीके से कर दिया देन देयर इज नो एरर, ओके। un प्लस 1 मैंने फाइंड कर दिया, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस n की जगह पे हमको n प्लस 1 करना था तो हमने कर दिया। अब un प्लस 1 अपॉन un करूंगा तो n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू माइनस n प्लस 1 इंटू इसका उल्टा करना है तो 1 प्लस 2 रेज़ टू माइनस n अपॉन n।
तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो n+1 के नीचे मैंने n ले लिया, and 1+2 n के नीचे 1+2 n+1 ले लिया। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, दिख रहा है सबको? ये कैंसिल हो रहा है दोनों? यस और नो? नो सर। नो। ओके, अब इसका लिमिट हम फाइंड करेंगे। तो पहले देखो, फर्स्ट का होगा 1+1/n, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे 1+2 n डिवाइड बाय 1+2 n+1। ओके, तो इसका जैसे आप लिमिट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1+0 आता है। हमने देखा था ना यहाँ पे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है एंड x⁻n है या फिर x⁻n है, तो उसका आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। यस और नो? यस सर। तो ये Sir. इसका आंसर 0 आएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा, तो टोटल 1 बचेगा। और यहाँ पे 1+0 है तो मेरा आंसर 1 आएगा। तब 1 आया तो क्या होगा? टेस्ट फेल। टेस्ट फेल है ना, डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। एज ए लिमिट इज 1 द डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स। ओके, अब जैसे ही फेल होता है तो हम जो दूसरे टेस्ट जानते हैं उसके लिए सोचेंगे। तो अब तक हमारे आगे कितने टेस्ट आए? 3 टेस्ट आए, ज्योमेट्रिकल है ना, उसके बाद पी टेस्ट एंड तीसरा कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन करने में थोड़ा काम इजी रहता है, तो आप उसके बारे में पहले सोच सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन से स्टार्ट किया, तो मैंने Vn सिलेक्ट किया 1/n। वो कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? आपको पता है कैसे सिलेक्ट करते हैं हम? UN में से n निकाल के। हाँ, ऊपर से जितने n कॉमन निकलते हैं वो नीचे से जितने n कॉमन निकलते हैं उस हिसाब से हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/n लिया, तो 1/n लेंगे तो UN/Vn करेंगे तो क्या बचेगा? 1/1 + 2 n। पक्का सबको पता चल रहा है ना? यस सर। भूल गए? हम क्या करते थे, UN हमारे पास होता था 1+2 n है। अब इसमें से हम सोचते थे कि ऊपर कितने n कॉमन निकलेंगे, नीचे कितने निकलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि n एक कॉमन निकल रहा है, तो Vn में आपको क्या लेना है? 1/n⁻p टाइप का। तो इसको अगर आप उल्टा सोचे तो 1/n⁻1 होगा। यस और नो? यस सर। और जब आप UN/Vn करेंगे तो n नहीं, थोड़ा गलती हो रहा है। 1+2 है और Vn नीचे है तो ऊपर n होगा, तो n² हुआ। तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? Vn n लेना पड़ेगा ना। लेकिन n मीन्स क्या होगा? 1/1/n⁻² होगा ना। तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ ना यहाँ पे। पता चला है सबको? यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? Vn? एनीबडी? 1/n⁻1। यस, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, तो यही फॉर्म है, हमने n ही लिया है, लेकिन उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/n⁻1। तो यहाँ पे हमारा आएगा 1/n⁻1। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस सर। ओके, तब जाके ये हमारा जो है ये n⁻1 आप n रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे n आएगा और ये दोनों कैंसल होंगे एंड यू हैव 1/1 + 2⁻n। डन, जो हमको यहाँ पे मिला है। एवरीबडी गॉट इट? प्लीज क्विक रिस्पॉन्स। यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट में हम क्या करते थे? लिमिट फाइंड करते थे। यहाँ पे लिमिट मिला UN/Vn 1, तो वहां पे कंडीशन था कि जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/Vn शुड बी फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो हम बोलते थे कि UN एंड Vn दोनों एक साथ कन्वर्जेंट एंड दोनों एक साथ डाइवर्जेंट हो गए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, बोथ सीरीज आर आइदर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट टुगेदर। अब जैसे ये कंप्लीट होता है, बट समेशन n = 1 to ∞ Vn, हम जानते हैं कि Vn =
1/n⁻⁻1 है, तो -1 है, तो -1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन 1 एंड लेस देन 1 होता है तो हम क्या करेंगे? डाइवर्जन। ऐसा नहीं है, देखो वहां पे p के लिए सोचना है अब, तो p इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 1, ये पीट सीरीज टेस्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखो एज पर पी सीरीज टेस्ट हियर p इज इक्वल टू -1, तो जैसे ही वो -1 होता है तो वो डाइवर्जेंट हो जाता है। ओके, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट by comparison test. So is there any doubt, any confusion in this example? No, sir. Anybody? Any question? Okay, then we go for the next Cauchy रूट टेस्ट। ओके, जैसे हमने रेशियो टेस्ट किया सेम तरीके से रूट भी हम फाइंड कर सकते हैं। रूट मीन्स उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट। ओके, तो nth रूट से हम इसको सॉल्व करना है। तो जब भी n रेज टू n पावर रेज टू n वाले ज्यादा टर्म्स होते हैं देन यू कैन गो फॉर द रूट टेस्ट। और ये जो इन्वेंट किया था उसका नेम है कॉसी, दैट मीन्स इट इज नोन एज कॉसीज रूट टेस्ट। ओके, टू आइडेंटिफाई द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे देखो, if summation of un is a positive term series and limit n tends to infinity un raised to 1/n is equal to l, तो यहाँ पर भी सेम आपको लिमिट निकालना है किसका? un raised to 1/n का। वो l के ऊपर पूरा बिहेवियर डिपेंड करता है। अगर l लेस देन 1 है then un is convergent and l greater than 1 है then given series is divergent. If l is equal to 1 है then the root test fails, that means no conclusion can be drawn about the convergence or divergence of the series. तो सेम है रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट, सिर्फ रेशियो में हम यहाँ पे लेंगे un plus 1/un एंड यहाँ पे हम लेंगे रूट, that means un raised to 1/n. Is it clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Any question regarding Cauchy's root test? No, sir. No, sir. What about others? Please give your response. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. We go for the root test. Thank you. Test the convergence of the series summation n equal to 1 to infinity 1/1 plus 1/n raised to n square. तो यहाँ पे देखो पावर में जब भी n है तो आपको ये रूट टेस्ट वाला सोचना है। तो यहाँ पे इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि रूट टेस्ट कब लगेगा, है ना। तो यहाँ पे 1/1 plus 1/n raised to n square है, तो दिस इज माय un। तो un 1 plus 1/n raised to n square हुआ, तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। un raised to 1/n, दैट इज माय सेकंड स्टेप। तो इसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो 1 plus 1/n raised to क्या हो जाएगा? n. Now if I find limit n tends to infinity un raised to 1/n, then what is my answer? Sir, you are 1/1. Yes, 1/n है। very good means you are in live, है ना। तो यहाँ पे 1/n है तो सब जगह पे 1/n आएगा। ओके, तो अब आंसर क्या आएगा? 1/e. यस, वेरी गुड, 1/e, क्योंकि इसका आंसर 1/e आएगा। मैं अगर ये 1 निकाल देता हूँ तो आंसर e आ जाता है और पूरा नेचर चेंज हो जाता है ना। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 1/e मींस लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? Less than Less 1. than लेस देन 1, दैट मींस द गिवन सीरीज इज Convergent. Divergent. अभी Divergent. कर रहे हो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट में। यहाँ पे देखो l इज लेस देन 1 देन इट इज कन्वर्जेंट एंड l इज ग्रेटर देन 1 देन डाइवर्जेंट। ये थोड़ा दिमाग में फिट कर दो, है ना। ये करेंगे तभी आप बिहेवियर बोल पाएंगे। यहाँ पे देखो un raised to 1/n फाइंड किया, उसके बाद उसकी लिमिट फाइंड किया 1/e which is less than 1, then due to less than 1 we can say that the given series is convergent by Cauchy root test. अब ये जो सेंटेंस है वो यहाँ पर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स बाय
Cauchy root test, the given series is convergent. आप इसको यहाँ पे लिखो या बाद में लिखो, नो मैटर, लेकिन लिखना जरूरी है कि कौन सा टेस्ट आपने अप्लाई किया है. इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes. Next, test the convergence of the series summation n equal to 1 to infinity log n upon 1000 raised to n. तो यहाँ पे देखो फिर से पावर में n है, दैट मीन्स यू गो फॉर द रूट टेस्ट. ओके, तो यहाँ पे फिर से अगर आप देखेंगे तो un इज इक्वल टू मेरा है log n अपॉन 1000 रेज टू n. तो मैं अगर un रेज टू 1 अपॉन n फाइंड करता हूँ तो व्हाट आई हैव log n upon 1000. Yes or no? Okay. Yes. Then if I go for the limit n tends to infinity, un raised to 1 upon n. What is my limit? क्या आएगा लिमिट? log infinity upon 1000. तो log infinity क्या हो जाता है? Infinity, है ना? तो infinity is greater than 1 or less than 1? Greater than 1. Greater than 1 हुआ तो बिहेवियर क्या हो जाएगा? Divergent. Divergent. तो यहाँ पे you can see here un is equal to this one, un raised to 1 upon n जैसे हमने लिखा वैसे ही हमको मिला. लिमिट n tends to infinity निकाला, un raised to 1 upon n which is infinity, then which is greater than 1. So the given series is divergent by Cauchy root test. Is there any confusion, any problem, any question? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, then test the convergence of the series summation n equal to 1 to infinity n raised to 10 upon 10 raised to n. Okay, तो यहाँ पे देखो थोड़ा un देखना है आपको. un is equal to n raised to 10 upon 10 raised to n. तो un raised to 1 upon n करेंगे तो what I have n raised to 10 upon 10 raised to n raised to n. तो यहाँ पे n raised to 10 by n हो जाएगा and यहाँ पे 10 हो जाएगा. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So what is the answer? What is the answer of limit? Limit का आंसर क्या आएगा? 10. Sorry? Sir, 1 upon 10. 1 upon 10. ओके, देखते हैं चलिए आप. un is equal to n raised to 10 upon 10 raised to n. अब यहाँ पे हमने 1 upon n रूट लिया तो n raised to 10 upon n 10. अब उसका un raised to 1 upon n फाइंड करेंगे तो आंसर इज 1 upon 10. यू आर राइट, बिकॉज दी इसको अगर आप देखेंगे तो दिस इज द n raised to 1 upon n raised to 10, है ना? तो इसका आंसर क्या आता है 1. तो 1 raised to 10 हुआ 1. That's why here 1 upon 10. Is it clear everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. यहाँ पे लेस देन 1 होने से इट इज कन्वर्जेंट बाय Cauchy root test. Done? Yes, sir. Okay. So test the convergence of the series summation n upon n plus 1 raised to n square. तो यहाँ पर भी पावर में n है तो आपको उसी से स्टार्ट करना है. स्टार्ट विद द un. सो un इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 रेज टू n स्क्वायर. अब आप un रेज टू 1 अपॉन n करेंगे तो n अपॉन n प्लस 1 रेज टू एक ही n बचेगा. लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा हमको? एनीबॉडी? माइनस n दोनों करना को n से पड़ेगा. डिवाइड करो. यस, इसको उल्टा करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? n प्लस 1 अपॉन n रेज टू माइनस n. यस और नो? Yes, sir. तो 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू माइनस n मिलेगा. और इसको आप अच्छी तरीके से लिखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू n रेज टू माइनस 1 होगा. तो व्हाट इज माय लिमिट ऑफ दिस टर्म? 1 by e. e raised to e. e रेज टू 1 माइनस upon e. हाँ 1 upon e. Okay, so e raised to minus 1, that means 1 upon e which is less than 1. Therefore the given series is convergent by Cauchy root test. So is there any doubt in this example? No, No, sir. sir. No.
No, sir. Okay. Next example. Test the convergence of the series 2 square upon 1 square minus 2 upon 1 raised to minus 1 plus 3 raised to 3 upon 2 cube minus 3 by 2 raised to minus 2 plus 4 raised to 4 upon 3 raised to 4 minus 4 by 3 raised to minus 3 and so on. Okay. चलो इसका nth root आप chat box में लिखो तो. What is the nth root? What is the possible nth root of this series? चलो मैं देखता हूं आपको वहां पे, या फिर कोई बोल भी सकता है लेकिन एक साथ मत बोलना, है ना. चलो कौन बोलेगा, कोई एक बताओ. व्हाट इज माय यूएन? हाँ यस बोलो. n raised to n n रेज टू n upon अपॉन n minus 1 raised to n n minus 1 रेज टू n minus n upon n minus 1 raised to minus n whole raised to. माइनस n. गलत है बेटा. n plus 1 minus m minus n plus 1 रेज टू n plus 1 वेरी n plus N 1 plus upon 1. n to the n power raised n to n plus plus 1 minus n plus 1 upon n whole to वेरी. the power minus n. ओके अब ये दोनों में पता चला डिफरेंस. बेटा जो आपने आंसर दिया था उनको पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी जो सीरीज है अगर आप 1 से स्टार्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा. देखो आप, क्लियर है ना. Yes sir. तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके आपको यूएन डिफाइन करना है. तो ये कीप इन योर माइंड, है ना, क्योंकि हमने जो रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट जो भी हमने डिफाइन किया है वो सारे टेस्ट में समेशन n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है. देखो यहाँ पे तो नहीं लिखा है लेकिन दिस इज रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. yes Yes, sir sir. Yes, sir. yes sir इसलिए आपको उसी हिसाब से सोचना है. तो व्हाट इज माय यूएन हियर? यस दिस इज द करेक्ट यूएन. तो यूएन मैंने वहां से स्टार्ट किया. ओके यहाँ पे n plus 1 होगा. यस सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट n रेज टू n plus 1. ओके सो यूएन इज इक्वल टू n plus 1 रेज टू n plus 1 डिवाइड बाय n रेज टू n plus 1 minus n plus 1 upon n raised to minus n. Now if you take the nth root of that, that means un raised to 1 upon n, that means here minus 1 is that. अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? N plus 1 by n को कॉमन निकाल के. यस तो n plus 1 upon n raised to minus 1 पूरा कॉमन निकलेगा minus 1 के साथ. तो मैंने कॉमन ले लिया. तो व्हाट आई हैव हियर n plus 1 रेज टू n बचा डिवाइड बाय n रेज टू n. तो उसको मैंने मर्ज कर दिया. n plus 1 upon n रेज टू n माइनस यहाँ पे तो ये पूरा बाहर हो चुका है तो यहाँ पे 1 मिलेगा. तो अब इसके बारे में आगे आप सोचेंगे तो यहाँ पर भी हम 1 plus 1 upon n बना सकते हैं. तो यहाँ पे देखो 1 plus 1 upon n रेज टू minus 1, यहाँ पे हुआ 1 plus 1 upon n रेज टू n minus 1 रेज टू minus 1. तो इसके बारे में सोचते हैं. तो व्हाट इज माय आंसर हियर? एनीबॉडी? लिमिट का आंसर क्या हो सकता है? सर 0 आता है. नहीं. Infinite. ये मैंने लिखा वो सही है कि नहीं? है ना, सही है सर. है ना. तो यहाँ पे 1 रेज टू minus 1 मीन्स 1. यस और नो? Yes, sir. और ये e minus 1 रेज टू minus 1 मीन्स 1 upon e minus 1. yes sir तो यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो 1 upon e मीन्स 2.71. तो 1.71 जितना होगा बाकी बचेगा. e minus 1 करेंगे तो Yes, sir. इट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. Less than 1. That means the given Less than series is convergent. So here you can see that missing term जो है वो मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ. तो आप थोड़ा बी केयरफुल, है ना. ये प्रेजेंटेशन में आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख के या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा. तो e minus 1 रेज टू minus 1 हुआ मेरा.
अभी -1 e -1 रेज़ टू -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन e -1 विच इज लेस देन 1. सो लेस देन 1 होने से इट इज कन्वर्जन बाय कॉची रूट टेस्ट. सो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने अगर अच्छी तरीके से मार्क किया होता तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप इन दिस बोथ द टेस्ट. कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है? UN डिफाइन करना. कीप इन योर माइंड, UN अगर आपने अच्छी तरीके से डिफाइन किया तो दोनों टेस्ट आप इजीली डील कर पाएंगे. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसमें गलती मत करना. ओके, नेक्स्ट अल्टरनेटिव सीरीज. अब हमने अब तक जितने भी सीरीज यहाँ पे स्टडी किए वो सारे कैसे थे? किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो पॉजिटिव टर्म सीरीज. कैसे थे सारे? Positive terms. पॉजिटिव टर्म सीरीज मीन्स एवरीवेयर वी हैव प्लस, है ना. इन ईच टर्म वी हैव प्लस. आप कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें सारे एग्जांपल में अब तक जितने भी एग्जांपल किए उसमें सब जगह पे प्लस है, क्योंकि समेशन मीन्स प्लस, है ना. तो यहाँ पे भी देखो प्लस 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 प्लस, ऐसे ये हर एक टर्म में. तो जितने भी एग्जांपल थे वो सारे हम पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए अब तक डिफाइन किए, और जितने भी टेस्ट है वो भी हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए डिफाइन करके दिए. तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पहले देखना है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है या फिर अल्टरनेटिव सीरीज है. अल्टरनेटिव सीरीज मीन्स प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा. दैट मीन्स उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में. देखो यहाँ पे एन इनफाइनाइट सीरीज विथ ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिव सीरीज. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखता हूँ 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन. तो इसमें मेरा क्या हो गया? ये देखो प्लस माइनस, दैट मीन्स दिस इज द ऑल्टरनेटिंग सीरीज. क्लियर? Sir. Yes, sir. तो इसका मैं UN फाइंड करूं, मीन्स nth टर्म फाइंड करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? एनीबॉडी? -1 to the power n minus 1 into 1 upon n. यस. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है. एक तो -1 कर सकता हूँ एंड दूसरा -1 भी लिख सकता हूँ. लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो जो ये माइनस वाली टर्म अगर आपको दिखाई देता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई डील विद द अल्टरनेटिंग सीरीज. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो उसके लिए एक ही टेस्ट है, तो आपके लिए थोड़ा इजी है. लिबनीज टेस्ट. कौन सा टेस्ट है? लिबनीज टेस्ट. तो लिबनीज टेस्ट सिर्फ अल्टरनेटिव सीरीज के लिए है. तो एन अल्टरनेटिव सीरीज देखो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, देखो समेशन n इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट होता है. तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1/n+1 इंटू UN. अगर आपके पास ये अल्टरनेटिंग सीरीज है एंड UN उसका पॉजिटिव है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, देन इट इज कन्वर्जन इफ. उसके लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है. नंबर 1, UN मीन्स जो भी आपको सीक्वेंस दिया है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. मीन्स वो क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. मीन्स UN+1 आप अगर फाइंड करते हो तो वो लेस देन UN होना चाहिए. दैट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. कंडीशन नंबर 1 हुआ. नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 आपको चेक करवाना है कि इफ द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN इज इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन यू कैन से डायरेक्टली द गिवन अल्टरनेटिव सीरीज इज कन्वर्जेंट. अगर दोनों में से कोई एक फेल हो जाता है तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट. ओके, लेकिन स्पेशल केस में फर्स्ट हो रहा है मीन्स डिक्रीजिंग हो रहा है, बट इसका जो आंसर है लिमिट का आंसर नॉन जीरो मिल रहा है, तो उसको ऑसिलेटिंग सीरीज में बोलेंगे हम. इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये फर्स्ट वाला तो होना ही चाहिए. ओके, उसके लिए भी देन द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1/n+1 into UN is an oscillating series. So is there any doubt, any confusion in Leibniz test or in this slide?
एनीबडी? No, sir. No, sir. ओके, यहाँ पे दूसरा कि हम इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो जो दिया है उसी से n+1 लेस देन un, या दूसरा अगर आपको फाइंड करना है तो un+1 माइनस un को लेस देन 0 दिखा दो तो भी चलेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यू कैन चेक डिक्रीजिंग बिहेवियर बाय दिस टू वे। तो आप एग्जाम्पल में कोई भी आप कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा आता है वो आप कर सकते हो और उसके बाद लिमिट चेक करो, देन यू कैन से इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो इसके लिए कितने स्टेप होंगे? तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको un फाइंड करना है। नंबर 2, वो डिक्रीजिंग है कि नहीं वो चेक करना है ना। एंड स्टेप नंबर 3 मीन्स डिक्रीजिंग मीन्स un+1 लेस देन un है कि नहीं। स्टेप नंबर 3, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, un फाइंड करना है। अगर ये 0 हुआ तो कन्वर्जेंट, अगर नॉन जीरो हुआ तो ऑसिलेटरी, है ना। ओके, अगर ये कंडीशन ही फेल हो जाता है, नंबर 2 वाला जो स्टेप नंबर 2 है वो फेल हो जाता है, देन यू कैन से दैट इट इज डाइवर्जेंट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखो तो आपको पता चलेगा। सो दैट द सीरीज 1/2 क्यूब माइनस 1 + 2 1/3 क्यूब प्लस 1 + 2 + 3 1/4 क्यूब माइनस एंड सो ऑन इज कन्वर्जेंट। तो इसका अगर आप nth टर्म डिसाइड करने जा रहे हैं तो बी केयरफुल। उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। चलो, यहाँ पे फर्स्ट प्लस है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि n+1 कर सकता हूँ या n माइनस, तो -1n+1 मैंने रख दिया क्योंकि प्लस माइनस है। अब 1/2 क्यूब है तो 1 क्या हो जाएगा मेरा n+1 क्यूब, वो भी फिक्स हो गया क्योंकि एवरी टर्म में 3 ही है पावर, तो मैं उसको वहां पे 3 रख दूंगा और 2 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए n+1। तो यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. अब आगे फर्स्ट टर्म में मेरा फर्स्ट है, सेकंड में 1 + 2 है, थर्ड में 1 + 2 + 3 हो रहा है, तो nth में क्या होगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n तक जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो ये मेरा गिवन सीरीज है समेशन। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे आपको n+1 समझना है। ओके, तो समेशन n = 1 to infinity is given अल्टरनेटिव सीरीज। अब इसमें से un, आप यही गलती कर देते हो कि un के साथ माइनस को भी आप ले लेते हो। कभी कभी एग्जाम्पल में आपका मार्क्स कहाँ पे काटा जाता है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो un के साथ माइनस को भी ले लेते हो। इट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो un मीन्स -1 के अलावा, आप देखो आगे डेफिनेशन में भी आप देखो, है ना, un कहाँ पे -1 के अलावा जितना भी टर्म है दैट इज योर un। तो उसी से आपको स्टार्ट करना है। तो un है मेरा 1 + 2 + 3 up to n एंड 1/n+1 क्यूब। लेकिन मैं इसका टोटल सम जानता हूँ। व्हाट इज माय टोटल सम फॉर दिस टर्म? समेशन 1/n n+1/2. N into n+1/2. n into n+1/2 और n+1 क्यूब वहां पे था ही तो मैंने वहां पे एज इट इज रखा। अब n+1 क्यूब में से एक n कैंसिल हो जाएगा, एक n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो n/2 n+1² बचेगा। तो यहाँ पे आप un+1 चेक करो तो un+1 = n+1/2 n+2² लेस देन n/2 n+1² = un होगा कि नहीं? यस और Yes, नो? sir. अगर ये Yes, आपको इजीली चेक करना है तो क्या करना है, आप n = 0 या n = 1 रिप्लेस करके 2-3 टर्म चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल इफ आई रिप्लेस n = 0 तो व्हाट आई हैव 1/2 × 2²। तो टोटल कितना हुआ? 1/8. 8। By 8. और यहाँ पे राइट साइड चेक करूँ तो 0, है ना, ऐसा हुआ ना? क्लियर? Yes, sir. तो 0 ले सकते हैं हम? नहीं ले सकते क्योंकि हमारी सीरीज ही 1 से स्टार्ट होता है। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Okay, sir. Yes. n = 1 से चेक करो तो क्या होगा देखो 2/2 × 3²।
तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा 1/9। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो 1/2 इंटू 2 स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 2/, यस ओके, तो 1/8, तो 1/8 इज ग्रेटर देन 1/9 और लेस देन, यस, Greater than. लेस देन, तो ये जो है वो यहाँ पे लेस देन आएगा क्योंकि ये छोटा है इससे, लेकिन ये पूरा अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, 1/9 छोटा हो जाएगा, तो इस हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो। सो दैट मीन्स हियर ईच टर्म इज लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ दिस सीरीज, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो देयरफॉर द गिवन सीरीज इज डिक्रीजिंग सीरीज। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे वो फर्स्ट कंडीशन हमने चेक कर लिया। नाउ वी गो फॉर द लिमिट। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, जो हमको दिया है un, वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/2 n+1 स्क्वायर, क्योंकि हमने जो un को सॉर्ट आउट किया वो ये है। ओके, तो n/2 n+1 होल स्क्वायर, उसमें हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फाइंड करेंगे, तो व्हाट इज माय लिमिट हियर, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा, कोई बताएगा? 1/infinity. 1/infinity, यस, क्योंकि n यहाँ पे एक बचेगा, तो 1/infinity मीन्स 0. 0। 0. तो हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इज इक्वल टू 0, यस और नो? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम सीधा बोलेंगे बाय लिबनिज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, Sir. ओके, Yes, sir. तो वी स्टॉप हियर, ये हम बाद में करेंगे। 1 2 3 3 एग्जाम्पल बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करके देन आवर दिस यूनिट इज कंप्लीट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये यूनिट का लास्ट है। यस सर, Yes, sir. Okay, Yes, so sir. we stop here. So is there any doubt, any confusion in this session? Anybody? No, sir. सर, No, Okay, so now